Okay, hey guys, hope you all are good. Hope you all are doing well in this situation. And okay, in this video, I'm basically going to talk about one of the problems. It is basically the CodeChef starters. It's from the CodeChef starters 10 contest. And I'm going to discuss last problem, which is tree distances. So it's basically the last problem in Div 2. So yeah, we have the tree distance sum problem. It is from CodeChef Starters 10, and I am Saptarshi Mukherjee here for this discussion. So, a short intro about myself, about the person you're going to listen for the next few minutes. I am an alumnus of IIT Bhilai. I have been a 6-star rated coder at CodeChef and a master at Codeforces. I've been to the ACM ICPC regionals in these 2 years, and I'm currently, performing as a software engineer too at Google. So that's about me. So now, coming back to the problem. First of all, I'm glad about two things. First of all, this is the first video on editorials that I'm making personally. So I'm glad that you have come up to here. And the second thing is that this is the last problem in Div 2 for Div 2 candidates. So it is good that you have read through all the editorials and you have come up to this position because it's definitely one of the most important things that upsolving is one of the most crucial things for computer programmers. So if you are at this video, you are like, I'm really glad about it. So, okay, this is the problem tree dist. It is an easy medium problem. And these are the prerequisites. What I just expect from you is that you should have done some amount of dynamic programming so that when we talk about like using certain values that we have stored somewhere, you can relate to that. So dynamic program basically would basically if you know dynamic programming, you have solved related problems. So you wouldn't feel anything much difficult over here. You can easily relate the things. So that is why I've kept it as a prerequisite. You just need the basic concepts of trees, and you need a basic concept of LCA. And least common ancestor, this is like sort of the kind of problems that we solve around LCA. This discussion does not require those things. You don't need to know a lot about LCA. LCA is just basically that thing that for two different nodes, when you move upwards, there is one common node which will be the ancestor of both. So you will have many common nodes which will be the ancestor of both. So you should know what these ancestors are, and the lowest common ancestor. So I think instead of least, it can be termed also as the least or the lowest common ancestor. That is basically important in this question. Okay. I'm sorry if it is traditionally called the lowest, but it doesn't make any problem. Uh, we can continue the discussion. Okay, so let us look at the question. Now it is given that it is a tree. So if you know those prerequisites, you're good to attend this. So now we have a tree which consists of n nodes, 1 to n. It is an undirected character undirected group. This is basically, it's talking about that it is a kind of undirected tree. So you can travel both ways. That is what it is telling. And we need the sum of distance between nodes x and y over all tuples u, v, x, y satisfying the following conditions. Now this is important. Let us maybe read the conditions. What it says is u must be less than v. U is the ancestor of node x and v is the ancestor of node y, and neither of u or v is the ancestor of the other. Since the sum can be enormous, we have to print it modulo this. So let us first understand. Now some hint has been given over here, so you know what an ancestor is. Using this, what we can understand is we basically have to find these tuples, and whatever are the tuples, say we have some tuple like this, we have some tuple e1 u1 v1 and x1 y1, then you will have some other tuple where you can have u2 v2 x1 y1. In both these cases, what it is saying is we basically require the sum of the distance between nodes x and y. So what it says, there can be many such tuples. For this kind of a tuple, we'll consider x1 plus y1. For this tuple, we'll again consider x1 plus y1. Somewhere else, we'll be considering some other x and y's. And finally, we'll be adding all these values, and whatever value we'll be getting, that is our answer. Okay. So I hope you have understood the problem. Now these are the conditions which are very important, and during the solution we'll again
come back and forth so that we can keep all of these things in mind. But first of all, what is important is where are u and v located. We know x and y are two nodes. Okay, so x and y are two nodes. X is over here, y is over here. Y can be on a like lower depth or higher depth. We don't know something like that, greater depth or lesser depth. But one thing we know that they are two distinct nodes. uh, Whether they can be the same node, we'll see that later. But first of all, they are two nodes. Now what is given is u is an ancestor of node x, v is an ancestor of node y. So what we basically know is that gradually in a rooted tree, if you think about a rooted tree, as you go upwards from x, according to the question, at some point of time you'll get u. And also one thing is important. It is given that the tree is rooted at the node 1. So there is no ambiguity about the question. The tree will look something like this. You will have 1 over here, you will have some nodes over here, and you will have something like this. So let us look at one sample test case. Suppose this is our test case. We have 5 nodes and we have these edges 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 5. So we know that 1 is the root. So we can say that 2 is one child. So we can say that 1 is a node. So 2 is a child. Then we can say that 2 is connected to 3, 3 is connected to 4, 2 is connected to 5. So 2 is connected to 3, 2 is connected to 5, I guess that was mentioned. 2 is connected to 5 and 3 is connected to 4. 3 is connected to 4. Now because it is a tree and it doesn't matter whether you make it to the left or to the right or to any, we know that it is not necessarily a binary tree, but it is always a rooted tree. What this means is that this is always at the topmost level. Whatever are connected to 1, that will be at this level. Whatever are connected to these nodes but not in the first level, they will be at this level. And similarly we will go downwards. So this is how the levels, the depths, everything are decided. Okay, so this much we know how the tree is getting constructed, and what we know is u is the ancestor of node x. What this immediately tells us is that once we have seen that 1 is the root and the edges we have seen, the structure of the tree is defined. So now if you say that I want to consider the node x, then it is absolutely clear at which level the node x is lying. So let us say this is x. If this is x, suppose that this is x according to this question. Now we have to find out what can be the values of u. U is the ancestor of node x. So first of all, we are not thinking about what can be y, we are just thinking about what possible values of u can exist. Not in valid tuples or anything. So what are the values, like where can y stay? Y basically can stay over here. You can have y over here, you can have y over here, you can have y over here. These are the valid ancestors. Even this one is a valid ancestor. And why I showed you all those structures and everything, because of this hint. In this note, what it is given is node x is considered to be an ancestor of y if x lies on the path from y1 to y. So you can see that u is an ancestor of node x if u lies in the path from x to 1 or 1 to x. Okay, so between 1 to x, what can we see? There are basically 3 nodes. So your ancestor of x can be one of these 3 nodes. You can be any of these. So now a similar rule applies to y. If we say that this is y, that means v, which is the ancestor of y, can be either this one or this guy or this guy. It can be either of these. So the number of possibilities of ancestors of y may vary from the number of possibilities of ancestors of x. You can understand that depending on the depth it will vary. Now, so we have understood how will our uvxy look like. Basically what it is telling is u is less than v, we'll see this later. U is the ancestor of node x, v is the ancestor of node y. Neither of u and v is the ancestor of the other. We'll also see this later. What we can say from here is this is a kind of a tree. This is suppose a kind of a rooted tree. Now we have some nodes. It can be like multiple, there can be multiple values also. Okay. Now you say you have x equals to this and y equals to this. These are your 2 nodes. What we can say is that if this is u and this is v, then this can be a tuple. Why? Because u and v, u follows the rule that it is an ancestor of x.
V follows the rule that it is an ancestors of Y, and you can also say that U and V both are referring to this particular node. Then also it follows this single rule that U and V, U is an ancestor of X and V is an ancestor of Y. Even this particular assignment helps, that this is equal to U and this is also equal to V. Like U is equal to this root node and V is also equal to this root node. But now according to the added constraint, or you can have something like this. You can say that this is U and this is V. So if you have this is U and this is V, then you can say now also the condition 2 is holding. U is an ancestor of X, V is an ancestor of Y. Now we know that neither of U or V is an ancestor of the other. This is important. What this tells you is U is over here an ancestor of V, which is not allowed. U cannot be an ancestor of V, V cannot be an ancestor of U. So let us try to think about the possibilities. This is our X, this is our Y. We have some nodes over here and we have some nodes over here. At one point of time they have the same ancestor. Every node, like if you go on traveling upwards, you will meet at node 1, right? Node 1 is the root for all the nodes. You will, as you travel upwards, some may take 5 steps, some will take 10 steps, but you will reach node 1. So definitely there will be one ancestor which will be common to all. Suppose this is the first ancestor, and this is what we call, as you all know, the LCA of node X and Y. Okay, now the important thing is above this also there will be some ancestors, and remember, one node cannot have multiple ancestors. One node cannot have multiple parents. So they will have multiple parents, like they will have their parent, you will go to their parents. You can say these are also valid ancestors of X and Y. So what we can see is that our value of U can sit over here, you can sit over here. Considering only the condition that you can be an ancestor of X, you can sit in all these nodes. It can sit over here, it can sit over here in all these nodes. We can also sit over here in all these nodes. They are all ancestors of Y. But the important condition is that U and V cannot be ancestors of each other. Now let us consider this. Suppose U lies in this particular part. U lies either at this common junction or above this. U lies somewhere over here. Can we say that wherever you keep V, if you keep V in this part, then U is going to be an ancestor of V? If you keep V somewhere over here, anywhere over here, then U is going to be an ancestor of V. So no V can exist. If suppose you keep V over here, यहाँ पे हम रखेंगे V को at U or below U, but above or somewhere like above this or at this LCA. We'll keep somewhere over here. Then also we can say that U will be an ancestor of V. Next thing is, if we keep V above this, wherever we keep V, V will become an ancestor of U. So what this tells us immediately is that U and V cannot be ancestors in this particular, or basically U and V, none of U and V can take these positions. U एंड वी इनमें से कोई भी ये इन पोजीशंस को ले नहीं सकता, बिकॉज अगर एक भी इन पोजीशंस में बैठ गया तो दूसरे को हम कहीं भी रखेंगे, हम कभी भी ऐसा वैलिड ट्यूपल बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि U के लिए हमें एक वैलिड V भी नहीं मिलेगा, V के लिए एक वैलिड U ही नहीं मिलेगा. इफ द सेम रूल अप्लाई टू दिस, लाइक इफ यू कीप V among these nodes, we cannot choose any position, we cannot keep U over here, क्योंकि ये U के लिए ये V बेसिकली एक एंसेस्टर है, सो इट इज नॉट अलाउड. वी हैव सीन द कंडीशन 3. फिर ये वाला भी अलाउड नहीं है, V एंसेस्टर बन जाएगा, ये सब अलाउड नहीं है, इधर भी अलाउड नहीं है. मान लेते कि ये V है अपना और इसके ऊपर काफ़ी सारे नोड्स हैं, तो हमने इसको V रखा है. अब इसके ऊपर अगर हम किसी को U रखेंगे, then U will become the ancestor of V. So whatever we keep, whichever position we choose for U, U is an ancestor of X. So whether we keep it below V or above V, if we keep V in this position, then V will definitely become an ancestor of V, ancestor of U. So one thing we can directly understand कि किसी तरह दोनों को सेपरेट रखना है. कोई ऐसा चीज नहीं कि U is greater और V is like up to now जो हमने लास्ट दो कंडीशंस देखा, ये जरूरी नहीं कि U को करीब रहना चाहिए इससे या V को करीब रहना चाहिए इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है. U can stay farther, V can stay farther, there can be anything, but they must stay at the two different locations. What it means is that कॉमन पोर्शन में कोई नहीं रह सकता है, सो दे विल रिमेन एट द डिसजॉइंट पोर्शंस. दिस इज द पोर्शन वेयर यू कैन स्टे, दिस इज द पोर्शन वेयर वी कैन स्टे. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन.
Okay, and I hope that some of you may have got these observations, so you can go on skipping videos or you can see at 2x, but it is good to like keep all these things in mind, that u can be equal to this value, it can be equal to these ancestors which are lower than these, which are strictly lower than this value. These are important. Okay, next thing is that u is less than v. U is less than v. Suppose we talk about two nodes over here. यहाँ पे अगर हम बात करें दो नोड्स की, दिस इज यू एंड दिस इज, और सपोज दीज आर टू नोड्स, एंड मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं यू और वी की तरह से लूंगा और इन दोनों को मैं एक्स और वाई की तरह से लूंगा. आई नो कि ऐसा कुछ लाइक लास्ट दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है. इफ अगर मैं इनमें से लाइक इसको अगर मैं यू ले लिया और इसको अगर मैं वी ले लिया तब ये सेटिस्फाई करता है. अगर मेरा लाइक इसको मैंने वी लिया, इसको मैंने यू लिया, और इसको मैंने वाई लिया, इसको मैंने एक्स लिया, तब भी ये सेटिस्फाई करता है. So what I am saying is this kind of a thing. Just a second. हाँ, तो ये मेरा एक वो LCA है. This is the LCA of these two nodes जिसका मुझे निकालना है. इनमें से एक x है, दूसरा y है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये x है तो इसको हम u बोल सकते हैं, ये y है तो इसको हम v बोल सकते हैं. और LCA ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम सेम नोड्स, ये दोनों सेम नोड्स है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये y है, ये x है, फिर मैं बोलूँगा कि ये v है, ये u है, एंड बोथ आर वैलिड ट्यूपल्स. एक ट्यूपल कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट द सेम स्ट्रक्चर लाइक द सेम नोड्स आई एम कंसिडरिंग आई एम गेटिंग टू ट्यूपल्स. बट ओवर हियर द थिंग इज दैट क्योंकि हमें बोल दिया है कि u इज लेस देन v, u इज लेस देन v, हमें क्या पता है कि दीज टू नोड्स they have unique values. We know 1 to n है सबके values. So if this value is less than that, then this value cannot be less than that. I'm sorry. Then this u cannot be less than this. If ये वाला u अगर इस v से कम है, then we can say that this ordering is valid. ये x y u v को हम ले सकते हैं. But then we can say अगर हम इसको u बनाए तो ये valid नहीं है. Why? Because in this case u is greater than v. If in this case I know that u is less than v, जब मैं ऐसे नेम करूँगा, मैं बस रिवर्स कर दूंगा तो मुझे पता है कि u इज ग्रेटर देन v. तो ये थोड़ा आप बैठ के सोचिए कि व्हाई डिड आई से दिस. व्हाट आई वांट टू से इज कि इफ यू कंसीडर ऐसे कोई भी दो नोड्स जिनका हम अभी मैंडेट नहीं कर रहे कि ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ कि u ग्रेटर देन v है तो हम कह सकते हैं, या फिर लाइक कभी भी आपने ऐसा दो नोड्स अगर चूज कर लिया और इनके दोनों एंसेस्टर आपने चूज कर लिया कि हाँ ये दो एंसेस्टर्स तो सही है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एंसेस्टर्स किसी न किसी एक केस में लाई करेगा. या तो इट विल लाई इन केस 1 और इट विल लाई इन केस 2. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केसेस? केस 1 सेज दैट कि लेफ्ट वाले पार्ट में जो एंसेस्टर मिल रहा है उसका वैल्यू राइट वाले के एंसेस्टर से कम है. सो हमने इन दोनों कैंडिडेट लिया है एज द इंटरमीडिएट नोड्स, एज द एंसेस्टर नोड्स. तो हमें पता है कि इन दोनों में से छोटा वाला लेफ्ट में है, तो इसको हमने u नाम दे दिया, हेंस इसको हमने x नाम दे दिया. तो ऐसे आप अगर कोई भी ऐसा हमें दे देंगे कि इन दोनों से मैं लेना चाहता हूँ, इन दोनों में से मैं x या y रखना चाहता हूँ और इन दोनों में से मैं x और y रखना चाहता हूँ, इन दोनों में से मैं u और v रखना चाहता हूँ, इन दोनों में से मैं u और v रखना चाहता हूँ. आई कैन से दैट ओके देयर इज एग्जैक्टली वन केस पॉसिबल, एग्जैक्टली वन ट्यूपल ही पॉसिबल है. कैसे? कि इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज नोड्स पे. अगर ये वैल्यू कम हुआ, इफ दिस इज स्मॉल, इफ दिस हैज अ स्मॉलर वैल्यू, व्हाट वी कैन से इज कि इसको हम u रखेंगे तो इसको हम x रखेंगे, फिर इसको हम v रखेंगे, फिर इसको हम y रखेंगे. व्हाट दिस एसेंशियली टेल्स अस इज कि ऐसे अगर हम देख लेंगे कोई भी दो नोड्स जिनके लिए हमें ऐसे एंसेस्टर मिल रहे हैं जो कि आपस में एंसेस्टर नहीं है, जब हमें ये मिल जाएगा तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, किस केस में नहीं मिलेगा वो बात कर लेंगे, बट फिलहाल हम कह सकते हैं जब भी हमें ये u और v मिलेगा, व्हाट वी कैन से इज कि हम वो u और v वो डेजिग्नेट अपने तरीके से कर सकते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज किन्हीं भी दो नोड्स के लिए मुझे हमेशा उनके दोनों एंसेस्टर्स को लेके हमेशा एक ट्यूपल मिल रहा है, एक टपल मिल रहा है. What is the significance of one tuple? I can say that with this node, this node, this node and this node, there are not 2 different or 4 different or 8 different tuples which are forming. There is exactly one tuple which is forming.
इसका एक एंसेस्टर मुझे पता है कि इसका एंसेस्टर यही है, उसका एंसेस्टर वही है। अब ऐसा नहीं कि हम एक बार एक्स को कंसिडर करेंगे, दूसरी बार इसको कंसिडर करेंगे, एक्स डिपेंड करेगा कि कौन छोटा है यू और वी में से, उस पे ही। इवन इफ यू और वी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई या आइदर ऑफ देम, you can apply the same rule. Now what is the case जिस केस में दो नोड्स जिसको आप x एंड y रखना चाहते हो उसके लिए कोई भी u और v नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर x के लिए कोई एंसेस्टर ऐसा कुछ y खुद हुआ तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ऐसा खुद हुआ लाइक x के एंसेस्टर y है तो हम क्या कह सकते हैं? कैन वी फाइंड सम u एंड v? कैन वी फाइंड सम u एंड v? हमें क्या पता है कि u कहीं पर इधर लाई करेगा, कहीं पर इधर लाई करेगा, और v कहीं पर इधर लाई करेगा। तो दोनों का सॉर्ट ऑफ अगर हम रूट की तरफ जाए, एंसेस्टर एक ही लाइक वाई ही एक्स का एंसेस्टर है, तो हम अगर इन दोनों एंसेस्टर्स को देखें जो कि एक्स का एंसेस्टर और वाई का एंसेस्टर है, हम अगर इवन लाइक सॉरी हमें पता है कि एक्स का एंसेस्टर यहाँ पर है और वाई का एंसेस्टर यहाँ पर है, तो हमें क्या पता है कि कुछ भी हो जाए यू एंड वी में से कोई ना कोई तो दूसरे का एंसेस्टर होगा। हमें भी नहीं पता किसका होगा, पर एक ना एक तो होगा ही, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट वैलिड। सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर गेटिंग द आइडिया कि हमारे x एंड y क्या क्या रूल फॉलो करेगा। वी हैव समथिंग लाइक दिस, x एंड y वी हैव हियर, एंड देन व्हाट वी नो इज neither of x or y should be an ancestor of the other. They will have some common, least common ancestor must have। और u हम बेसिकली चूज कर सकते हैं इस एलसीए के नीचे जितने सारे नोड्स हैं उनमें से किसी भी एक को, और यहाँ पे हम किसी भी एक को हम वी चूज कर सकते हैं। ना फॉरगेट अबाउट एक्स एंड वाई, कोई भी दो नोड्स दिया हुआ है जो एक दूसरे का एंसेस्टर नहीं है, उनके एक कॉमन एलसीए जो कि एल है। हमें पता नहीं है कौन सा क्या है। लेट अस अप्लाई द सेम काइंड ऑफ लॉजिक कि यहाँ पे हम निकालेंगे इसका एंसेस्टर, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका एंसेस्टर। हमें पता नहीं कौन यू है कौन वी है, बट हमें ये पता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन कौन सा x है कौन सा y है वो डिटरमाइन नहीं कर रहा है डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज द सेम, x टू y या y टू x। तो हम कह सकते हैं कि इधर as the intermediary nodes, as the node of this guy's ancestor, suppose this is w, I can say that over here I will choose one aw. What is aw? This is an ancestor of w. Over here I'll choose some x, and here I'll be having a of x. So we'll have ancestor of x in this part. So what we can say is कि ये जो सारे नोड्स है इनमें से मेरा चॉइस मिल रहा है मुझे, यहाँ भी सारे ऐसे चॉइसेस मिल रहे हैं मुझे, which may be of different numbers. I can choose any one of them as aw and any one of them as ax. aw और ax में से if aw is less than ax, then what we say is कि u is equal to aw, x is equal to w. Okay, इधर थोड़ा वो confusion हो गया, right? x और y हम लोग पहले x और y लेके बात कर रहे थे, so let me change it. हाँ, तो अब ये मैं इसको नाम दूंगा v भी टेकन है, w z या z, whatever you call it. So we can say that if it is greater, if it is less than az, u equals to aw, and w also will be assigning, I think, yeah. So x is equal to w, and v equals to az, and y equals to z. So we can say कि w और z हमने चूज कर लिया जस्ट दोनों नोड्स को जो एक दूसरे का एंसेस्टर नहीं है, उनके हमने देख लिया कि क्या क्या एंसेस्टर्स है। हम जानते हैं इनमें से किसी भी aw को उठाएंगे और इनमें से किसी को भी az के फॉर्म में उठाएंगे विच आर डिसजॉइंट। हम जानते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, द aws and azs are all disjoint. If I pick up any one from here and any one from here, which basically means awc1 multiplied by azc1, anyone I'll pick from here, anyone I'll pick from there, I can say for all of them exactly, like for each of them I'll get exactly one tuple, and that tuple is given by this relation. This is in the condition when it is less. If it is more, like if it is more, ये कभी इक्वल तो हो नहीं सकता, वी नो दैट द वैल्यूज आर यूनिक, तो ये कभी इक्वल तो हो नहीं सकती। इन हर एक के लिए ऐसा ही कुछ है, हम इसको डेजिग्नेट करेंगे समथिंग लाइक दिस। we'll just keep the opposite thing, v equals to aw, y equals to w, u equals to az, y equals to x equals to z. These are the things.
नाउ व्हाट डू वी नो फ्रॉम हियर कि इसके लिए भी हमें सेम ही चीज मिल रहा है, AWC1 मल्टीप्लाइड बाई AZC1। और देखिए बाद में हमें जब आंसर करना पड़ रहा है, हमें ये देखना भी नहीं पड़ रहा है कि किसको हमने V का नाम दिया, किसको हमने U का नाम दिया, बस इंटरचेंज हो गया एंड वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी केयर अबाउट ओनली द नंबर। सो आफ्टर दिस यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन थिंक अबाउट इट that which is becoming Z, which is becoming W, that is not important to us, and hence we take the resolve over here, that will forget about these W, Z, all these things। हम बस सिंपल लाइक आर्बिट्रली इस कंडीशन को हम लोग इतना वैल्यू नहीं करेंगे। दिस कंडीशन हेल्प्स अस इन एन इंपॉर्टेंट मैटर। व्हाट इज दैट कि एक टपल को एक ही बार कंसीडर करो, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई इंटरचेंज कर दो, यू और वी इंटरचेंज कर दो और दूसरा टपल बन गया। नो, a tuple definitely like you can't change it, you can't say that if you have something like 1 3 4 2, if this is a tuple 1 3 4 2, if this is a tuple, you can't say कि हम इंटरचेंज कर देंगे तो ऐसे 3 1 2 4 will not become a new tuple, rather you will consider this kind of a tuple exactly once। ठीक है, सॉर्ट ऑफ आपके अनऑर्डर्ड कोऑर्डिनेट वो सब उस टाइप का, अनऑर्डर्ड पेयर उस टाइप का है। Okay, so this should give us the initial clarity, and now we have not yet entered the algorithm, so let us see कि algorithm कैसे proceed कर सकता है। First of all, this is ये हमारा कोई एक W या हम for the moment X कह लेते, यहाँ पे हम इसको Y मान लेते, इसको हम इसको लेके लाइक कंसर्न नहीं है कि इसके ऊपर जो है उससे छोटा ही होना चाहिए, हम कंसीडर एक ही बार करेंगे। सो देन इट इज द सेम थिंग। सो नाउ व्हाट वी कैन से इज कि यहाँ पे कितने वैल्यूज यू हो सकते हैं। यू कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज, जितने सारे नोड्स है यहाँ से चालू होगा और इसके नीचे खत्म होगा, लास्ट जो नोड है इसके नीचे खत्म होगा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स, सपोज दिस इज L, what can we say, what is the number of nodes over here? It is basically the distance between X and L, these many nodes, these many nodes are present and you can belong to any of them, you can belong to any of them। so basically जो हमने इधर लिखा था AWC1, what I meant is the number of nodes possible in AW, जितने सारे nodes possible हैं वो मैंने लिखा है। so what is the number of those nodes, it is dist XL, and over here it is basically the same thing, we can say कि कितने सारे nodes हमारा वो V ले सकता है, it is basically dist of YL। okay, they may not be the same। what is this dist? Dist means the distance between those two nodes, Y and L and X and L। so over here I can better write it as both these things। the better way of writing is dist of W comma L C1 multiplied by dist of Z comma L C1। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें ये मिल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है x और y के बीच में, ये कितनी बार काउंटेड होगा, जितने सारे टपल्स होंगे, कितने सारे टपल्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कितने सारे नोड्स रहते हैं, कितने सारे u और v हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कितने सारे हमारे टपल्स हो सकते हैं। दीज नोड्स आर देयर, डिस्टेंस xl, सो हमें पता है इतने सारे हमारे टपल्स बन सकते हैं। सो द नंबर ऑफ टपल्स आर dist xl C1 multiplied by dist yl C1, this is number of tuples which we can say as dist xl multiplied by dist of y comma l। and now the important thing is, for every tuple of this kind, what is the distance between the nodes, x और y के बीच distance क्या है, it is basically the distance over here, it starts from here ends over here, x से लेकर y तक। so what can we say, हर एक के लिए वो सेम है, x से लेकर y तक, ये हम u और v जिसको भी चूज करें, what we have to say, what is the sum of distance between nodes x and y over all the tuples। so जो भी tuples बनेंगे हर एक के लिए हमें x और y के बीच में जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस को ऐड करते जाना है हर एक के केस में। सॉर्ट ऑफ शायद मैंने इधर लिखा था या फिर एक चीज गलत गया था। ओके, तो व्हाट आई मेंट बाय द सम इज द डिस्टेंसेस। ओके, आई एम सॉरी अबाउट इट। तो ये डिस्टेंस इसकी जगह लिया जाएगा, नॉट x प्लस x1 प्लस y1, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन x1 प्लस y1, x1 एंड y1। ओके, कूल।
So now, okay, so what I can tell is up to here we have these many tuples, hence the distances जो कि x एंड y के लिए आ रहा है, कंसीडरिंग कि x एंड y के बीच में ही हम बस देख रहे हैं कि x एंड y को इंक्लूड करके कितने सारे टपल्स बन सकते हैं। तो उस केस में हमें बेसिकली मिलेगा इतने सारे टपल्स मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्टेंस है, xl मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस yl मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस ऑफ जो डिस्टेंस आपके इन दोनों के बीच में विच इज x and y. Clear? So henceforth I'll be writing this as d. So I'll be writing this something as dxl multiplied by dyl multiplied by dxy. Okay. This is the sum contributed whenever we have whenever we are trying to consider all possibilities of tuples including x and y at the extremities. Okay. उसके लिए हम ऐसा कुछ रिलेशन निकाले हैं. So what can we say? सीधे सीधे हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि over all the x and y if we calculate that x belongs to like 1 to n, y belongs to 1, I'm sorry, is that the way of writing it? X belongs to 1 to n, y belongs to 1 to n. Okay. अब LC अगर आपने सॉर्ट ऑफ ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, एक चीज जस्ट चेक कर लेंगे वेदर x इज एन एंसेस्टर ऑफ, एक चीज बस चेक कर लेंगे वेदर x इज एन एंसेस्टर ऑफ y और y इज एन एंसेस्टर ऑफ x. इफ दैट इज ट्रू देन वी विल मेक इट 0, एल्स वी विल गिव दिस काइंड ऑफ अ रिलेशन, वी विल गिव दिस रिलेशन ओवर हियर. देन इफ वी सम दिस अप, ये एक्सप्रेशन अगर हम सम अप करें हर एक के लिए तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर टाइम्स ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने टाइम में निकलेगा. तो एक पॉसिबिलिटी का हम पहले ही फ्लॉयड वार्शल कर लेते हैं. फ्लॉयड वार्शल अगर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लॉयड वार्शल पूरा एल्गोरिथम रन करते हैं ऑर्डर n क्यूब में, तो टोटल चीज़ हमें n क्यूब में मिल सकता है. मोर एफिशिएंट वे ऑफ सेइंग दिस इज कि x और y के बीच में हम इजीली हमारा LCA निकाल सकते हैं. सो इन दैट केस किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में अगर LCA निकलना है, L को निकालना तो log n में निकल जाएगा. एक बार log n में निकल जाएगा तो वो डिस्टेंस भी निकल जाता है, डेप्थ को माइनस करके डिस्टेंस में निकल जाता है. और ये फिर उससे ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि L का हमें निकल जाएगा, L log n में मिल जाएगा, तो हमें डिस्टेंस ऑफ x and L we will also get in log n time. I mean just from that we can find it out, and d of y comma L also we can find it out just from the depths. And then this one we can say this is just the sum of these two things. It is a sum of d of x comma L and d of y comma L. We can just add them up because like if you visualize it you will find out from x we are going to L, from L we are going to y. So what is the distance between x and y? The distance between x and L and the distance between L and y, if we sum up we are going to get it. Okay, everything is fine, right? So yeah, the video is going longer than expected, क्योंकि थोड़ा involved है, but I want like all of you to follow it well, and please let us know in the comments and in your feedbacks how you are like liking it, whether you are liking the details, and finally are you able to grasp the thing. बट ये बाइनरी लिफ्टिंग के बारे में इतना मत सोचिए, बट इतना आप सोच लीजिए कि अगर हमें L मिल गया और हमें हर एक नोड का डेप्थ पता है जो एक सिंपल DFS से मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि we can get the entire answer in n square log n. But the problem is that there is a big problem, which is कि n अपना 10 to the power 5 है. So n square is itself quite like हाँ n 10 to the power 5 है, ऊपर से टेस्ट केसेस के बाद n 10 to the power 6 तक जा सकता है. 10 to the power 5 ही फॉर द मोमेंट ध्यान में रखते हैं, एक ही टेस्ट केस, उस केस में ये तो फेल होके तो काफ़ी दूर चला जाएगा. We cannot use any of these. We have to think of some smart method. So हमें फाइनली यही बस कैलकुलेट करना है कि ओवर ऑल द पेयर्स ऑफ x and y, over all x and y belonging to V, and I'll call it as unordered pair. Okay, unordered pair. क्यों हमने वो देख लिया है, बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली स्ट्रेसेस ऑन विजुअलाइजिंग इट एज अनऑर्डर्ड पेयर. फिर हम कहेंगे कि सारे अनऑर्डर्ड पेयर्स के लिए इफ
LCA of x and y is not equal to x and not equal to y. क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक भी हो गया इसका मतलब एक दूसरे का एंसेस्टर है. If none of this is there, we can say summation of these values. We can just consider summation over all those things, over all x and y. Summation of d of xl multiplied by d of yl multiplied by d of or we can write it something like this, d of xl plus d of yl, right? ये अभी तक हमें मिला है. We can calculate this and we can find out from here. Okay, so over here we are basically using these two values. dx, y हमें fresh तरीके से नहीं देखना है. And we have seen कि इसमें number of terms ही है. ये जो summation over all the xy unordered pairs हो रहा है, ये itself NC2 है, उससे थोड़ा कम हो सकता है अगर ये LCA वाला चीज़ थोड़ा कम कर दिया. But basically like वो order n square ही है. So now going into the depth of it, what better can we do? इसमें मैं एक चीज़ रिमाइंड करना चाहूँगा. You might remember or might have seen the problem. It is an associated problem. It is not at all a prerequisite. ये just आपके reference के लिए. Whenever we want to find the largest rectangle in histogram, हम क्या करते हैं? पहले हमारा like histogram में कोई भी histogram में हम वो rectangle निकालना चाहते हैं. If you know this problem, then only you can match with it. पहला हमारा रहता है कि हर एक पोजीशन का स्टार्टिंग पोजीशन कंसीडर करो और देखो कहाँ तक एक्सटेंड कर पाते हो. ऐसे हम जब जाते हैं पहले हमारे एन स्क्वायर पेयर्स आ जाते हैं. फिर हम देखते हैं हम अपना like we change our way of thinking to such a like stage that we say that now we'll consider the middle nodes. From every middle node we'll try to spread it. As we consider the middle node, what happens is that the number of middle nodes or the number of nodes which can act as the middle nodes is now n. It is not n square. Over there we actually change our way of thinking. Here also we'll do the same thing. If we consider the pairs, that pairs is n square in number. There is one thing in this entire interaction, there is just one thing, which is the L. For every L, we can say that there are unique values of x and y. Why? Because for any value of x and y, there is a unique L. You cannot have multiple least common ancestors, lowest common ancestors. Okay? So, if these two are your nodes x and y, there is a single L. You cannot have multiple L values. So what we can say is, take this L and find out for this L, what are the different pairs whose LCA is L. So find out all those pairs and try to sum it over them. So try to sum it over them, all the xy, whatever you get. And we want basically this summation over all L. We'll basically change our perspective. We will say over all L for all xy, and again we are talking about unordered pairs, such that LCA of xy is equal to L and the usual conditions जो हमने बताया था, it should not be equal to x and y. ठीक है, ये सारी चीजें जब हम देख लेंगे, what we can say is कि over all those L, if we just sum up for every L, if we take these xy's and we just sum up, तो थोड़ा देखने में अच्छा रहता है, because this summation will take place over n terms, at most n terms. हर एक को एक बार LCA लेके वो जस्ट ऐड करेगा, तो बाकी का टर्म अगर हर एक टर्म अगर बहुत इजीली कैलकुलेटेड हो गया तो ऐड करना इट विल बी क्वाइट ईजियर. सो यू बेसिकली हैव दिस समेशन ऑफ d of x, l multiplied by d of y, l multiplied by d of x, l plus d of y, l. Make sense? Okay. That is it. We have quite well, like we have come quite close to it. In order to visualize it better, क्योंकि काफ़ी सारे terms है, let us see it कि इसको हम क्या बोल सकते हैं. हर एक L के लिए, for every L, okay, we can say कि सारे जो possibilities होंगे हर एक L के लिए x and y's का, for every L, again एक interesting चीज़ है कि over all the x, y's possible, we need this summation. What is the summation? The summation is basically
फॉर अ पर्टिकुलर एक्स एंड वाई क्या होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, d of xl, d of yl, d of xl. So d of xl square, d of yl plus d of yl square, d of xl. Okay, so these are the two things you need to take care of. ये दोनों वैल्यूज अगर बहुत इजीली मिल गया, इफ आई टेल यू कि एक l के लिए, अब हम क्या चाहते हैं, हर एक l के लिए ये जानना कि ये अगर मेरा l है तो मैं ये चाहता हूँ जानना कि इसके नीचे जो भी है, जहाँ पर जो भी x एंड y है, मैं चाहता हूँ कि d ऑफ एक्सएल स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई एल, अगर इन दोनों के बीच मतलब वही कॉमन एंसेस्टर वाला चीज़ नहीं है तो मैं चाहता हूँ ये वैल्यू जानना, और ये मैं हर एक के लिए लाइक ये मैं सबका सॉर्ट ऑफ सम चाहता हूँ, द समेशन ऑफ these two things, d like x वाले डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू y वाले डिस्टेंस एंड y वाले डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू x वाले डिस्टेंस। और देखिए यहाँ पे एक अमेजिंग एक एसोसिएटिविटी या कम्यूटेटिविटी या लाइक मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन कंबाइन थिंग्स। व्हाट इज दैट, मान लीजिए एक y1 है और ये एक y2 है, यहाँ पे एक y2 है, दोनों ही x के साथ कंपैटिबल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम अगर इसके लिए निकाल रहे फॉर दिस विल कंसिडर y1 कॉमा एल, यही एक ही टर्म में हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन y के साथ एक ही टर्म है अपना d ऑफ y कॉमा एल, इसके लिए d ऑफ y2 कॉमा एल। द फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज यहाँ पे अगर हम दोनों के लिए कंसिडर करना चाहेंगे x से लेकर y और y से लेकर x, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन जस्ट रिप्लेस दीज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को हम कहेंगे कि इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, d ऑफ y1 कॉमा एल प्लस d ऑफ y2 कॉमा एल, राइट, and we will replace this one by again something like this, d of y1 comma l, this d square y1 comma l plus d square y2 comma l। so अगर मेरा कुछ ऐसा स्टोर रहा कि ये y के साइड से मुझे ये सम ऑफ स्क्वायर्स मिल रहा है, तो मैं सीधे सीधे इसको यहाँ पे बिठा सकता हूँ y, ये मेरा दो तरीके से लाइक एक बार आप x और y1 के लिए लिखिए ये पूरा एक्सप्रेशन, दूसरी बार x और y2 के लिए लिखिए, देन ऐड देम अप, so you'll get basically this, and what you can see is कि यहाँ पे y को we can like interchange it with the summation of these two values and here we can replace by the summation of these two values. This is important. तो किसी तरह हमें क्या चाहिए कि जब x इस सब ट्री में बिलोंग करता है और y इस सब ट्री में बिलोंग करता है, मुझे अगर y के केसेस में वो वैल्यूज का और वैल्यूज के स्क्वायर्स का समेशन मिल जाएगा, आई कैन यूज देम टुगेदर। सिमिलरली अगर यहाँ भी आपका x1 है, यहाँ भी आपका x2 है, टर्न्स आउट कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं x1 x2 के लिए आप यही कीजिए, x1 y1 के लिए एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, d ऑफ x1 l d ऑफ जो भी है इस l के लिए, एक पर्टिकुलर LCA के लिए, जो भी आपके x1 x2 इधर आते हैं और y1 y2 उधर आते हैं, x1 y1 लिखिए, x2 y2 लिखिए, x1 y2 लिखिए और x2 y1 लिखिए, एंड देन ऐड दीज थिंग्स अप, जो भी आपको मिलेगा जस्ट ऐड दोज थिंग्स अप एंड यू विल सी कि यहाँ पे अगर आप x वाले टर्म को जस्ट रिप्लेस कर देंगे बाई समथिंग लाइक दिस, सॉरी ये स्क्वायर को अगर आप रिप्लेस कर देंगे बाई समथिंग लाइक दिस, d ऑफ x1 l square plus d of x2 l square, if we do this we are done, we can find it out, like we can directly replace it, and over here also we can replace it, right? So these are some hints that किसी तरह अगर हमें क्या पता है, now the important thing is क्या पता है, sum of distances, एक L चाहेगा कि मुझे मेरे उस सब ट्री में जिसके साथ मेरे इस सब ट्री के वाले पेयर कर सकते हैं, मेरे उस सब ट्री में अगर x है तो इस सब ट्री वाले y बन सकते हैं, उनके साथ पेयर कर सकते हैं। सो मैं क्या चाहूँगा कि इस सब ट्री वाले मुझे आके बता दे कि उनके सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या है फ्रॉम मी उनके सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या है, और मुझे ये भी बता दे कि उनके सम ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर क्या है, हर एक का जो डिस्टेंस स्क्वायर होगा उनके सम क्या है। अगर ये दो चीज़ें मुझे हर एक सब ट्री से मिल जाएगा, सपोज वी गेट समथिंग लाइक दिस, इस सब ट्री से जो ये नीचे जा रही है, सब चिल्ड्रन आ रहे हैं नीचे से, हम मान लेते कि ये S1 है और ये T1 है, ये S2 है, ये T2 है, ये क्या है समझा रहा हूँ, S3 है, T3 है और S4 है, T4 है। तो S1 बेसिकली है मेरा ये समेशन,
कि यहाँ से जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उनके सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एल, आई वांट दिस, सो दिस इज द समेशन, और T1 है सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। यहाँ पे S2 और यहाँ पे T2 स्क्वायर, यहाँ पे S3, यहाँ पे T3 स्क्वायर, यहाँ पे S4, यहाँ पे T4 स्क्वायर। फॉर कन्वीनियंस अभी मैं 3 ही कंसिडर कर रहा हूँ। मैं कंसिडर कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ चौथा वाला कुछ नहीं है, ताकि वो इजीली हम लोग कंप्यूट कर पाए। सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये। हमें क्या पता, अगर दो रहेगा तो समथिंग लाइक दिस, या कुछ ऐसा होगा, S1T2 प्लस S2T1, ऊपर से हमें ये रिलेशन मिल जाता है, S1T2 प्लस S2T1। फिर हमें क्या पता है कि ये सब ट्री उसके साथ भी नाता रखेगा, S3T3 जो है नीचे जाके जुड़ नहीं जाता है, ट्री है, ठीक है, याद रखना। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज S1T3 प्लस S3T1, then we can say this is S2T3 plus T3S2, I'm sorry, S3T2, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर इसके नीचे कितने होंगे, इसके नीचे अगर x डिफरेंट चिल्ड्रन होंगे, तो इट विल बेसिकली लीड टू XC2 डिफरेंट टर्म्स। ये जो टर्म्स होंगे वो XC2 होंगे, एंड वापस ये n² वाला डर पैदा कर रहा है, क्योंकि अगर किसी का चिल्ड्रन है n/2, तो n/2 होल C2 ऐसा कुछ हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट लार्ज। इसको अवॉइड करने का ईजी तरीका है समथिंग लाइक दिस। इसको अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करें, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन टेक्निक। हम पहले S1T1 के लिए देखेंगे। तो जब S2T2 में विजिट करेंगे, हम S1T1 विजिट कर चुके हैं, तो हम S2T2 को इस टर्म्स में देखेंगे, विल सी इट लाइक दिस, S2T1 प्लस S1T2 प्लस, जब हम S3T3 को देखेंगे तब S3 के लिए T में हमारा T1 भी आएगा, T2 भी आएगा, तो हम S3 के लिए ऐसे करेंगे, S3T1 प्लस T2 प्लस T3 S1 प्लस S2। तो इससे कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हम सब ट्री 2 में जा रहे हैं, हम 1 में गए हैं, हमने इससे पहले कोई सब ट्री नहीं देखा, तो अभी तक हमें कोई पेयरिंग नहीं मिला। जब हम सब ट्री 2 में गए हैं, तो हमने बोल दिया अभी तक जो मिला S और T का वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसा क्रॉस तरीके से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सब ट्री में जब हम जाएंगे, तब दोनों का सम कंसीडर करेंगे, दोनों को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों का हम सम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसी है, अगर ये S4 T4 कुछ रहेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, S4 मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 मल्टीप्लाइड बाई S1 प्लस S2 प्लस S3। अगेन मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, बट आई विल लीव इट एज अ काइंड ऑफ होमवर्क। प्लीज गेट वेरी वेल कन्विंस्ड अबाउट इट, दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस। अगर एक बार समझ गए तो बाकी का सोल्यूशन बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, सो वेयर वी आर नाउ। अभी हमें पता चल गया कि कोई अगर हमें बात बता देगा नीचे का, लाइक सब ट्रीज अगर हमें बता देंगे उनके S3 और T3 वैल्यूज, SI और TI वैल्यूज, फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड आउट दैट मी बीइंग द LCA व्हाट आर द समेशंस पॉसिबल। और देखिए, हर LCA अगर ये बता देगा तो उन सबको सम करके हम लोग ऐड करके आंसर दे देंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये सब लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, ये सब लोग कैसे बताएंगे, एंड वील यूज अ सिंपल टेक्निक। इसमें हम लोग एकदम एलिगेंट लाइक टेक्निक यूज करेंगे, जो है ट्री के अंदर घुसो, तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारे चिल्ड्रन को पता चलेगा उसके बाद ही, तो तुम्हारे चिल्ड्रन को पहले बोलो कि तुम लोग पता करो, द चिल्ड्रन विल फाइंड आउट, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट द चिल्ड्रन गिव, आई हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सक्सेसर्स फ्रॉम मी, एंड आई नीड टू, हाँ, जो डिसेंडेंट्स है मेरे सारे डिसेंडेंट्स, वही टेक्निकल टर्म है, तो सारे जो भी डिसेंडेंट्स है, आई वांट टू फाइंड आउट माय डिस्टेंस फ्रॉम एवरी वन ऑफ देम, द समेशन ऑफ दैट, आई डोंट वांट टू फाइंड द इंडिविजुअल वंस, और समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस, दैट इज व्हाट आई नीड, दीज टू थिंग्स। सो अगर नीचे मेरे ये वैल्यूज रहेंगे, ये बताएगा मेरा S1T1 है, ये बताएगा मेरे S2T2 है, ये बताएगा मेरे S3T3 है, इसको बताना पड़ेगा कि मेरा S और T ये वैल्यूज है, बस इन तीनों को देख के। हाउ विल इट फाइंड आउट इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। सो लेट अस सी, ये बस एक छोटा चीज है। फर्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट S, फाइंडिंग S, ओके। तो जब ऐसा कुछ है, एक ही पर फोकस करते हैं, इसका S1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें हर एक नोड, जो भी नोड्स है उसका यहां तक का डिस्टेंस, एनी नोड
whatever is its distance from here, it is basically storing the sum of all the distances, right? And now we want to find that, like इसके लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? हम चाहते हैं सबका डिस्टेंस, तो हम चाहेंगे ये कि सब ट्री 1 के लिए जो डिस्टेंस है वो पहले मिल जाए, सब ट्री 2 के लिए जो डिस्टेंस है वो पहले मिल जाए, फिर सब ट्री 3 के लिए सबको ऐड कर देंगे, हमें समेशन मिल जाएगा। हमें क्या पता है कि इसके खुद के लिए तो इसका डिस्टेंस जीरो ही है, एलसीए से एलसीए खुद का डिस्टेंस जीरो ही है, तो वो पार्ट तो ठीक है हट गया, हमें बस सब ट्री जो कि हमारे नीचे है उनसे हमें चाहिए। S1 से हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी से कि S1 इन यहाँ पे जो भी नोड्स है उनके लिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस आएगा? फॉर दिस द एलिगेंट ऑब्जर्वेशन इज, यहाँ पे जो भी नोड्स है उन सबके डिस्टेंसेस, कोई भी एक नोड मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कुछ अगर x1 है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा? शैल इट बी x1 + 1, राइट? यहाँ तक अगर इसका डिस्टेंस x1 था, तो अगर एक और डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा तो x1 + 1 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं ये सारे नोड्स, एक का डिस्टेंस है 3, एक का डिस्टेंस है 5, एक का डिस्टेंस है 1, या इसका तो 0 है, किसी और का है 4, किसी और का है 2। अब मैं उतना देख के नहीं मार्क किया, तो हम क्या कह सकते हैं? सबके लिए +1 + 1 होगा, सबके लिए +1 + 1 होगा, सबको एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस चाहिए उधर रीच करने के लिए, सो द सम ऑफ डिस्टेंसेस ओवर हियर, मैं कह सकता कि यहाँ इसके लिए बेसिकली S1 तो होगा ही, ये सारे डिस्टेंसेस हर एक के साथ +1 होगा। सो कैन आई से, और बेसिकली वी कैन व्यू इट लाइक दिस, हर एक के लिए बेसिकली क्या होगा, समथिंग AI वैल्यू होगा इधर, या फिर XI वैल्यू। XI मतलब इस वैल्यू, इस नोड तक पहुंचने वाला वैल्यू। हम क्या करेंगे, जो भी एक्साइज होगा हम हर एक के लिए xi + 1 कंसीडर करेंगे। सो अगर यहाँ पे 5 नोड है तो x1 + 1, x1 + 2, x2 + 1 सॉरी, x3 + 1, x4 + 1, ऐसे करके मान लेते 5 नोड है तो x1 x5 + 1, हर एक के लिए ये काउंट करेंगे, हमें ये चाहिए। इनमें से एक ये भी है जो ये खुद अपना है, जिसको इसने 0 कंसीडर किया है, हम चाहते हैं इसके लिए भी +1 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इनमें से ये भी होगा, ये अपना एक एक्स्ट्रा नोड जो कि 0 + 1 है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी प्लस करके रखे हैं, ये सब चीज़ें प्लस होके ही हमारा हमारा बना है S1। ये 0 को मैंने इंक्लूड कर दिया, ये 0 का कुछ लाइक वो इम्पोर्टेंस ही नहीं इधर, ये सब हमारा बना है S1। और ये सब क्या है? कैन वी सी दीज आर नंबर ऑफ नोड्स जो भी हमारे सब ट्री में प्रेजेंट है, दिस इज नंबर ऑफ नोड्स। So that is it. We can say directly that it is S1 plus the size of this particular node. What is this node? We can suppose giving it a name. This is A. So I can say the size of A, the size of this subtree or the subtree rooted at this node. अब ये size निकालना like simple DFS से, I hope you can find it out. Using a simple DFS, you can recursively find out the size of every subtree. तो उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं S1 plus SZ of A. Now you have got this, and इस तरीके से आप हर एक का निकाल सकते हैं। We can say we can have the similar thing. ये अगर B है, ये अगर C है, तो आप ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, S2 plus size of B plus S3 plus size of C. We will basically have this value equal to S. Okay? अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम T कैसे निकालेंगे। हम एक बार T निकालेंगे तो द रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस द एंटायर थिंग, एग्जिस्टिंग वैल्यूज के बेसिस पे सब कुछ हमारा कैलकुलेटेड हो जाएगा। ओके, सो जब भी हम ऐसा चीज़ बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस यूज करो। तो कभी भी जब हम ऐसे अप्रोच यूज करते हैं, देयर आर टू पार्ट्स, वन इज बेस केस, अनदर इज रिकर्सिव केस। दिस इज अ रिकर्सिव केस जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लुक एट द सॉल्यूशंस, लुक एट द सब प्रॉब्लम्स, यूज दो सॉल्यूशंस एंड मेक योर ओन प्रॉब्लम, मेक योर ओन solution. So when we look at such a solving paradigm, we need the base case. Base case क्या है? अपने leaves. Leaves के लिए कोई भी सब प्रॉब्लम्स अवेलेबल नहीं है। So कोई भी leaves के लिए हम क्या कह सकते हैं? Leaves के लिए हम कह सकते हैं कि the S value will be equal to 0. क्यों? क्योंकि उस सब ट्री में कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो उससे पॉजिटिव डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। So the summation of positive distances 0 है। वो जब ऊपर जाएगा तो हम बेसिकली ये साइजेस हम लोग देख लेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, और एल्स आई विल टेक इट टुगेदर, या फिर देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए।
इधर ही 1 2 3 1 2, तो ऊपर जो एग्जांपल लिखे थे वही 1 2 3 1 2 5 भी था ना, हाँ 2 5 और 3 4, सो 3 4 और 2 5। इस केस में हम क्या बोलेंगे, द एस वैल्यू इज 0। ओवर हियर वी विल से दैट द एस वैल्यू इज इक्वल टू 1। एक ही मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि साइज है, इस सब ट्री का साइज है 1 प्लस दिस 0। सो हमने बोल दिया कि हाँ जो साइज है उसके साथ ये बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम वी विल से दैट एस इक्वल टू 3 आई गेस। क्यों होगा, क्योंकि 2 है इसका साइज, 2 प्लस 1 इज 3, सॉरी अभी तक ये पता नहीं है, सो 3 उसके लिए आएगा लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। राइट वाले पार्ट के लिए अभी इसका एस 0 है, इसका एस इसके लिए 1 मिल जाएगा बिकॉज इट्स साइज इज 1। So 3 plus 1 equal to 4. This is the this entire s value. Okay. ये जब ऊपर भेजेगा ये बोलेगा s is equal to, ये फॉर्मूला और इसका साइज क्या है, the size is basically 1 2 3 4। हर एक का डिस्टेंस एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हैं इनमें से हर एक नोट का डिस्टेंस एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर 4 है इन हर एक का, तो जब ऐड होके वहां जाएगा तो 4 प्लस 4 8 होगा। वी कैन से 8। सो 8 इज द समेशन। इसको आप इस 8 से कंपेयर मत कीजिए, इस 8 वाला आंसर जो है, दिस इज द समेशन ओनली। ओके, समेशन ऑफ डिस्टेंसेस। नाउ वी नीड द सम ऑफ स्क्वायर्स विच इज एक्चुअली perhaps the means once you have reached up to here, yes sum of squares ही थोड़ा आपको इन्वॉल्व रख सकता है कि वो कैसे निकालेंगे। जब मुझे इन दोनों ने बता दिया कि हमारा है T1, इसका है T2, हाउ कैन यू फाइंड आउट। और इसने बता दिया कि सम वैल्यू है 35, ये बता दिया कुछ और वैल्यू है, हम कैसे निकाल सकते कि ऊपर जाने के बाद ये जो ऐड होगा, ये ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा। वी हैव समथिंग लाइक दिस, सपोज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वी हैव समथिंग। तो क्या ऐसा ऐड करेंगे कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, हर एक का डिस्टेंस एक एक करके बढ़ जाएगा। इवन इफ आई हैव समथिंग लाइक ओवर हियर, इफ आई समथिंग लाइक 0 स्क्वायर, सपोज इस खुद के वैल्यू यहाँ पे 0 था, तो मैं क्या चाहता हूँ अभी आके ये ऐसा कुछ बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। व्हाट कैन आई ऐड टू इट सो दैट इट बिकम समथिंग लाइक दिस। देख लेते हैं। 3 स्क्वायर से अगर आपको 4 स्क्वायर रीच करना है, इनफैक्ट अगर आपको कभी भी x स्क्वायर से रीच करना है x प्लस 1 होल स्क्वायर, what do you add? You have to add 2x plus 1. If you want to, like from here you can definitely, like I've already divulged it, but from here you can actually try solving it yourself. It will be fun, but okay, let me complete it. You can pause the video, think yourself, and then again come back if you are stuck somewhere. So for every such increment we are getting plus 2x plus 1, so it depends on this x value, but now we have linearized it. ये मैं linear तरीके से मिल गया है। देर आर टू टर्म्स 1 और 2x, हम हर एक के लिए बोल सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगा हम हर एक के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 3 ऐड होगा और 1 ऐड होगा। यहाँ पर क्या ऐड होगा, 2 इंटू 3 ऐड होगा और 1 ऐड होगा। क्यों, 2 इंटू एक्स ऐड हो रहा है और 1 ऐड हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर 2 इंटू 4 ऐड होगा। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ, लाइक 2 इंटू 0 प्लस 1 ये दोनों ऐड होगा। आई होप इट वॉज क्लियर। द बेसिक रीजन वॉज दैट हाँ, ये इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हर एक के डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो डी अगर डी प्लस 1 हो रहा है तो मुझे डी स्क्वायर से भी डी प्लस 1 होल स्क्वायर चाहिए, और मेरा यहाँ पर क्या स्टोर्ड है, समेशन ऑफ द डी स्क्वायर्स। सो मैं समेशन ऑफ द डी स्क्वायर से समेशन ऑफ डी प्लस 1 स्क्वायर्स चाहता हूँ, डी प्लस 1 के स्क्वायर्स। तो मैं उसके लिए अब देख रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, समथिंग लाइक दिस। इंडिविजुअली ये हमें नहीं मिलेंगे, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये मुझे इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, बट मैं इससे रिलेशन निकालना चाहता हूँ कि कुछ मिलता है कि नहीं। मुझे अगर इनके सम चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला सम है, मेरे पास ये वाला सम है, मुझे पता है, मुझे ये वाला सम चाहिए, तो मुझे बेसिकली ये वाला सम चाहिए, पूरा जो सम है मुझे ये वाला सम चाहिए। आई डोंट वांट देम इंडिविजुअली। तो सम क्या होगा देख लेते हैं। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 0, 2 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0। कैन यू सी, यहाँ हमने जो लिखा था 3 3 4 0, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 0 स्क्वायर, व्हाट डिड दिस इंडिकेट कि इनके डिस्टेंसेस, बेसिकली जो सम ऑफ डिस्टेंसेस थे उन्हीं के स्क्वायर्स मैं उधर ऐड किया था, ऐड करके कुछ बना था। तो मुझे सीधे सीधे लाइक रिक्वायरमेंट पड़ रहा है
उनके लीनियर टर्म्स का. So twice the sum of the distances can directly help as my addendum or whatever you call it. And then we can say कि इसके बाद 1 ऐड करना पड़ेगा. कितनी बार ऐड करेंगे? जितने सारे नोड्स होंगे. हर एक नोड का डिस्टेंस फिर से 1 करके इंक्रीज हो रहा है. तो अगेन द साइज ऑफ whatever is, like, yeah, summation of sizes, we can say summation of sizes whatever of the child. Okay, overall the child will be doing it. So हमें क्या मिला? हमें बेसिकली इतना ही मिला है कि अगर ऐसा आपका है कुछ S1 T1 S2 T2 S3 T3 ST, तो हम कह सकते हैं कि S के लिए तो हमें पता है क्या हो जाएगा. इट विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस the sizes, summation of the sizes, and we can say T is going to be equal to T1 प्लस T2 प्लस T3. ये मैं ऐड पहले क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये वाला चाहिए, तो पहले इनिशियल वैल्यू चाहिए और फिर द एडिंग द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू ऐड. या फिर अगर अलग अलग से लिखो T1 प्लस S1, या फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो T1 प्लस S1 प्लस द साइज ऑफ दैट, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, ये वाला चीज़. नेक्स्ट हम करेंगे T2 प्लस S2 प्लस SZ of 2, T3 plus S3 plus SZ of 3. This is how we'll be doing it. Okay. तो ऐसे हमें T मिल जाएंगे. नाउ इट इज डूएबल. तो हम क्या कह सकते हैं कि नीचे वाले ST को लेकर हम खुद ST बना सकते हैं. ऐसे अगर हम नीचे से ऐसे चले तो वी आर डन. सो कोई एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हमें क्या पता है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इधर कहा था कि we will be doing something like this, S1 T2 plus S2 T1 plus something like this. एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नज़र में लाना. यहाँ पे S1 का एक सिग्निफिकेंस है, वो है कि इस नोड से कितना डिस्टेंस है. हम वो चाहते हैं S1 में. आपको याद होगा कि हम वही कर रहे थे, डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम x, डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम y. तो यहाँ पे ये S1 मतलब याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ से S1 लेके जब ऐड करके जो वैल्यू बनता है उसको हम यहाँ पे ट्रीट किए हैं एज S1 T2 plus S2 T1. Okay, try to understand it. Like, you can go back and again watch what exactly I had told. But what we are wanting is कि यहाँ तक अगर हमें sum of distances, S1 is nothing but sum of distances up to LCA. But इस केस में आपको जो S1 मिलेगा वो होगा sum of distance up to this child. तो आप जब ऊपर लाएंगे तब आप वो कैलकुलेट कर लेना कि अब साइज को ऐड करने के बाद मुझे मिल जाएगा what is the distance up to me. आप T के लिए भी वो ऐड कर लेना, ये वाला चीज़ आप ऐड कर लेना. So this is what you will get as the T1. In that case, you can call it as T1 dash. Okay. We can call it something as something like this: T equals to T1 dash plus T2 dash plus T3 dash. We can call S as S1 dash plus S2 dash plus S3 dash. And now you can apply the same formula something like this कि इस नोड पे अगर हमें चेक करना है, I will do something like this. S2 से हम चालू किए थे, S2 dash T1 dash प्लस S1 डैश T2 डैश प्लस अब S3 डैश लेंगे एंड इसमें जाएगा दो चीज़ें, T1 डैश प्लस T2 डैश प्लस T3 डैश को लेंगे, जाएगा दो चीज़ें, S1 डैश प्लस S2 डैश. दीज आर द थिंग्स. सो यहाँ पे आपने देखा, लाइक हमने देखे इट इज सिंपल. ये जस्ट ये चीज़ें यूज़ करके इधर ऐसे बन रहा है. ओके. अब ये सिंपल, अब हम क्या बोल सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं. आई थिंक यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए. आई एम जस्ट नाउ जॉइनिंग द पीसेस. सो मे बी वी कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड चेक इट. इस केस में छोटा सा एग्जाम्पल, कोई 1 2 यही वाला लेते हैं, 1 2 1 2 3 4
2 से 5 आया था ना, so there is nothing over here. You have something like this 5 over here. अब हम अलग अलग कलर से मार्क करते हैं कि what are the values, और we can copy it from there. ओके, साइज ही बस हमने लिखा था. तो 0 1 4 आई थिंक, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 0 था. दीज आर द सम ऑफ डिस्टेंसेस हमें मिला था. और इसके लिए सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या हो जाएगा, 4 + 4 8. आप एक एक करके कैलकुलेट करके देख सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा. ठीक है. देन इसके लिए t जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए t आएगा 0, इसके लिए t क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये 1 जो है, ये 1 जो है 1 का स्क्वायर सिंपली, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा. लेट अस कैलकुलेट इट थ्रू आवर मेथड. हमने क्या किया है, नीचे वाले से हम क्या ले रहे हैं, द t + s + साइज. तो हम देखते हैं t + s + साइज हम करेंगे तो 0 + 0 + 1, तो ये 1 ही आएगा. नेक्स्ट इसके केस में 0 आ जाएगा. ऊपर जाएंगे तो देखते हैं क्या करेंगे, t + s + साइज इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा. अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ तक देखिए हमें किसी भी नोड पे दो अलग साइड पे नोड्स नहीं मिल रहे थे. तो अब हम थोड़ा पार्ट्स में इसको करते हैं. s हमें लेफ्ट से कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग 3. राइट से कितना s मिल रहा है, 1. t हमें लेफ्ट से कितना मिल रहा है, t हमें लेफ्ट से मिल रहा है आई थिंक, यहाँ पे t है, सो t + s + साइज 1 + 1 + 2, सो इट इज 4. 4 हमें लेफ्ट से मिल रहा है, राइट से मिल रहा है 0 + 0 + 1 विच इज़ 1. अब हम अगर इसमें निकालना चाहते हैं कि कितने सारे आएंगे, 3 × 1 + 1 × 4, 3 × 1 + 1 × 4 विच इज़ 7. अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं. S1 T2 + S2 T1. ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक रह गया था. द सम ऑफ स्क्वायर्स इज क्या होना चाहिए, 2 है और 1 है, तो 5 आना चाहिए. तो चेक करके देख लेते हैं क्यों हमारा 4 आया है. इट विल बी 1 + 2 + द साइज. नो, इट विल बी 1 + 2 × s + द साइज, राइट. 1 प्लस वो शायद मैंने इधर गलत, हाँ, इधर 2 × s, हम 2 × s करके इधर कर रहे हैं, सो आई एम सॉरी अबाउट इट. T1 + 2 S1, T2 + 2 S2, T3 + 2 S3. I just correct it. If you have understood the concept, this should not be a big deal. Now we can come over here and we can say कि ये 2 times हो जाएगा. And over here it will basically be 5. We can have 5 over here, right? Great. So 5 + 1 means 6. We don't require that. Let us see what exactly we get. 3 × 1 + 5 × 1. Now we have 3 × 1 + 5 × 1. So we can have 8. How did I do this? S1 dash into T2 dash plus T1 dash into S2 dash. Now we can see over here what do I get? 8 मुझे मिल रहा है because of 4 + 4 8, right? और t मुझे कुछ मिलेगा, बट आई नो कि कोई भी और सब ट्री नहीं है. तो इन दैट केस डेफिनेटली ये एलसी हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. दिस इज द ओनली थिंग वी आर गेटिंग. ओके, सो okay, I hope this idea was clear and I hope that I have been able to make it crystal clear for many of you. If you think you have fallen prey to some tree concept, I mentioned that tree concepts are important. Over there I basically wanted you to have done some amount of DFS. You can check the code that I'll be showing, but if you have not seen basic DFS of finding the size of every subtree, or just basic DFS in a tree to calculate the longest distance in a subtree, you can check those easy problems and you can come back. Then you will find
a better excitement in this editorial. Okay, cool. So now this is just the code. I'm just showing a glimpse of it, which I have tried out myself. Okay, so this up to here it is only the input, and this is in Java. I am now initializing an array. I'm defining an array with all 0 values initially, and this is the size. I'm going to store the size in sz. Sz of I means size of the subtree rooted at I. Okay, and I've changed everything to 0 indexed. So everything was 1 indexed initially. I changed it to 0 indexed over here. Okay. Okay. Now what I said is sum of weighted paths. So S value I'm storing over here, sum of weighted paths, and sum of squared weighted paths I'm storing over here. Okay, and then I'm calling the DFS. When I call the DFS, I'm just basically sending these things. What I'm doing is at any node, I'll be calculating the size. So what I'll be doing is size starts with 1, the node itself. Then it adds itself with all the children's size. This is an easy part. Okay, this is where I'm basically working on the sizes. So we have decided the sizes, and by the time it comes out of the for loop, I'll know that the size is correct. But before all the children are visited, the size is not correct. But we know कि size हमें कब लग रहा है? Size हमें लग रहा है हमारे children को देखने के लिए. हमारे children का size हमें काम आ रहा है, right? ठीक है. Now what else? Now we can check over here. sz of car long val equals 0. ओके, तो वैल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं. हम क्या बोल रहे हैं कि वैल में हमारा आंसर है. इस सब ट्री में हम देखेंगे कि हम अगर हर एक नोड को एलसीए में कंसीडर करेंगे एज एलसीए, तो व्हाट इज द सम आई गेट. सो इसको मैं भेज दूंगा, ऐसे ही इटरेटिवली कैलकुलेट होगा. ठीक है, तो हम इस वैल्यू में ऐड कर रहे हैं. करेंटली 0 है, फिर इस वैल्यू में हम ऐड कर रहे हैं, और फिर हम इस खुद के लिए ऐड करेंगे. इसको हम क्या ऐड करें कि हमारे चिल्ड्रन से क्या मिल रहा है, हमारे चिल्ड्रन हमें क्या भेज रहे हैं. फिर हम देखेंगे हम खुद क्या अटेंड कर पा रहे हैं. तो उसमें ये चीज़ है, यहाँ पे ये जो सम वेटेड पाथ्स है, ये क्या है? ये बेसिकली है जो हमें हमारा चाइल्ड दे रहा है. हमारा चाइल्ड है वाई. मैंने देखी इधर पे क्या है, वो इंट वाई इन ए आर कार्ड. इतना ही छोटा कोड है, समझ लीजिए थोड़ा. तो वी हैव सम वैल्यू ऑफ S1 मान लीजिए. तो S1 से हमने क्या बनाया इधर? What we have basically made over here is S2 dash. Okay, sorry, T1 dash. S1 से मैंने बना T1 dash. ये जो प्लस इक्वल टू मैंने किया, व्हाट एम आई टेलिंग कि T1 तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास S1 है, तो T1 प्लस 2 इंटू S1 प्लस साइज. ये दोनों चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा T2 dash. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने S1 को चेंज करने से पहले इसको यूज़ किया. मुझे पता है कि S1 को भी S1 डैश में चेंज करना पड़ेगा, मैंने उससे पहले ये काम किया है, तो मैंने S1 को यहाँ पे ले लिया. नेक्स्ट थिंग मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि ये कंसिडर कर लो सम ऑफ स्क्वायर्ड वेटेड पाथ्स. ये जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हें इस सब ट्री से मिला है, वो तुम कंसिडर कर लो. ये तुम्हारा क्या है? ये बेसिकली इससे पहले जो सब ट्रीज तुम्हें मिले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. So the summation of all the S values that we have got before, that is sum weighted paths card. Where we are doing, we will see that. फिर हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे इस सब ट्री में जो S1 प्रेजेंट है, उस S1 से या S2 जो भी प्रेजेंट है, S2 को S2 डैश बनाओ, जो भी SI है उसको SI डैश बनाओ. तो we'll be getting some SI dash by adding the size. Then we'll be going to the val, and here we go. val के केस में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अभी तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. इससे पहले जो टी वैल्यूज तुमने देखा था वो इसके अंदर स्टोर्ड है. कैसे स्टोर्ड है वो हम देख लेंगे, बट पहले मान लो कि स्टोर्ड है. टी वैल्यूज के सम इधर है ना, इधर हमने किया था ये T1 डैश प्लस T2 डैश, वो इधर स्टोर्ड है. और S3 डैश कहाँ में मिला? S3 डैश इसने क्रिएट किया प्लस करके, और यहाँ पे हमें दे दिया, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया. नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया, सारे इधर ऐड करके हमें वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट है कि ये वैल्यूज बन कैसे रहे. ये जो करंट वाला वैल्यू है या ये वाला करंट वाला वैल्यू है जिसमें हम सम स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए हम सिंपल यही चीज़ कर रहे हैं कि जब भी हम एक सब ट्री को छोड़ के दूसरे सब ट्री में जा रहे हैं, तो इस सब ट्री का इन्फॉर्मेशन हमारे करंट वाले में डाल दो. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सम वी आर एडिंग टू दिस वन. करंट वाले में y को ऐड कर रहे हैं, बोथ इन केस ऑफ सम वेटेड पार्ट्स एंड इन सम स्क्वायर्ड वेटेड पार्ट्स. वी आर जस्ट डूइंग द एग्जैक्टली सेम थिंग. And then we are doing the modulus. So this is where we are preparing it for the next iteration. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, बाय द एंड क्या होगा कि आपका ये T1 डैश प्लस T2 डैश प्लस T3 डैश करते करते आपका T फॉर्म हो जाएगा. तो यही जो इधर फॉर्म हुआ है, सम स्क्वायर्ड वेटेड पास, सम वेटेड पास, यही आपका यूज़ होगा. यही आप
like आपके parent में use कर पाएंगे, right? So your parent will be using this, using some weighted paths y and all these things. Okay. Then what we are doing over here, we are calculating three things. One is what the children are giving me, what I am getting by uh, my own like previous t values, sorry, previous s values and current t value, and over here I am considering previous t values and current s value. तो ऐसे करके सारे वेराइटीज कवर कर लिए और हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा. वी कैन चेक इट मे बी क्विकली. I won't be submitting it, but if you have taken the screenshot, you can try on your own, or you can take a screenshot and you can code like it is going to work. You have 02854, and this is basically the code. But try to understand it and try to code it yourself, because that will be the best learning after this involved session. I'm sure not the entire part will be pertinent to all of you, but if you have watched up to here, I expect that all of you have got something to learn, though it has been quite a longer video than I had myself expected. So anyway, take care, and it's a good practice to upsolve, so always keep a watch on the videos that are going to come, because there's nothing so good as upsolving if it comes to improving yourself in computer programming. So all the best, and let us know in the comment section about the immediate things, like in the next 3-4 days I'll myself be monitoring all the comments and everything. So and after that also, if you give some comments, it will be readily intimated to me. So that's it. If you have any feedback, do let us know. If you have faced any problems, if you feel there has been a difference from your expectation or the way it is usually done, please let me know. I'll definitely work on them. So yeah, that's it. Hope it has been good, a good session. Take care. Give your feedbacks. Subscribe to the channel. Enjoy coding, and yeah, improve your ratings and take good care. Bye.